Good morning, students. Hello, how are you? So, welcome in our next class. And today, as you know, that we are doing our next chapter, and that is a truly beautiful mind, and it's all about Albert Einstein. So, in our previous class, I have given you the explanation, or we can say introduction about Albert Einstein, that what was Albert Einstein and what type of things we will do in this chapter, or we will read in this chapter. कि जैसा कि आपको पता है कि हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कर रहे हैं, और मैंने पहले भी क्लास में आपको बता दिया था कि क्या हम पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या चीज़ है। अब उनकी जो एक काम करने की जो कैपेसिटी है, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, वी विल रीड एंड वी फाइंड आउट इन दिस चैप्टर that how he was called Einstein. As I have told you that Einstein means genius, कि जैसा कि मैंने पहले बताया आइंस्टाइन का मतलब क्या होता है, जीनियस होता है। तो उसी चीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव डन फर्स्ट first part or first passage of this chapter, and I am revising all about it. Albert Einstein was born on 14th March 1879. As we know that he was born on 14th March 1879. This was his birth, and where he was born in Germany. And city was Ulm. So he was born in Germany, and in Germany he was born in Ulm city, and there, so people know him about his greatness, and that was his best part of life. So we are going to do here the biography of Albert Einstein. So Albert Einstein was born on 14th March 1879. Albert Einstein का जन्म कब हुआ? 14th March 1879 को हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी के अंदर हुआ, और जर्मनी का भी एक शहर है अल्म, वहाँ उसका जन्म हुआ। Without an indication that he was destined for greatness. Actually, without indication, he didn't give any indication at the time of birth, or we can say in his early childhood. शुरुआती बचपन के अंदर किसी प्रकार का इंडिकेशन नहीं था कि एक बहुत ज़्यादा ग्रेट बच्चा है, क्योंकि उसकी जो माँ है, his mother never thought about it. उसकी माँ ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था। On the contrary, as I have told you, contrary means opposite. So his mother thought Albert was a frack. उसकी माँ जो है वो ये सोचती थी कि अल्बर्ट क्या है? फ्रैक है। फ्रैक मतलब क्या होता है कि ऐसा बच्चा जो औरों से अलग काम करता है, अलग चलता है, उसका माइंड थोड़ा कम काम करता है, वो लेट बोलना उसने शुरू किया, तो ये चीज़ें फ्रैक के अंदर आती है। ठीक है, फ्रैक ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन, कि असंतुष्टि पूर्व, एक सहमति के साथ में किसी व्यक्ति के बारे में बात करना, हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव, जो अनयूजुअल है, असामान्य है, जो सही ढंग से व्यवहार नहीं करता है, लुक और थिंक सही ढंग से वो देखता नहीं है, सोचता नहीं है, लाइक अदर्स, दूसरे बच्चों के समान उसे फ्रैक कहा जाता है। तो उसकी माँ उसको फ्रैक सोचती थी, एंड टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसके लिए क्या था कि उसकी माँ के लिए उसका जो सर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा उसको लगता था। वो सोचती थी कि ये किसी काम का नहीं है। तो ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उसकी माँ के विचार। दिस वॉज द थॉट ऑफ हिज मदर अबाउट हिम। सो नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल wasn't talking. So as the age of 2.5 years, when he was 2.5 years old, you know that a child starts talking within 1 year, or we can say just 1.5 year. When he becomes 1.5 year old, he starts talking. But here, when he was 2.5 years old, still at that time he was not talking. He didn't start talking. उसने बात करना शुरू नहीं किया था। जब तक वो 2.5 साल का था, उसने बात करना शुरू नहीं किया था। तो ये एक अनयूजुअल चीज थी, बहुत लेट बोलना शुरू किया उसने। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Now, one more thing happened, that finally after 2.5 years old he started talking. But now whenever he tried to talk, or whenever he was talking, he speak
वर्ड ट्वाइस, वो हर ईच एंड एवरी वर्ड, हर शब्द को वो 2 बार बोलता था, ये उसकी एक विशेषता वहां पर हो गई थी. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज playmates called him brother boring. So Einstein didn't know that what should I do with my classmates, how I should behave here with my classmates, and how I become friend other boys. So that's why he didn't indulge with all these guys. तो इसलिए क्या है कि वो उन बच्चों में शामिल नहीं हुआ. indulge का मतलब होता है शामिल होना. तो वो उन बच्चों के साथ में शामिल ही नहीं हुआ. उसे पता ही नहीं था कि मुझे दूसरे बच्चों के साथ में व्यवहार कैसे करना है, वो दोस्त कैसे बनाने हैं, उनके साथ बात कैसे करनी है. ठीक है, तो इसीलिए वो उनके साथ में शामिल नहीं हो पाता था. और that's why his friends means children of his classmates, कि उसके सहपाठी, उसके क्लास के जो बच्चे थे, वो क्या करते थे, उसे ब्रदर बोरिंग कहलाते थे. ब्रदर बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या होता है, उबाऊ, जिससे उब जाते हैं. होता है, सबके साथ होता है. आप लोग पढ़ते हो, आपकी क्लास में भी हर बच्चे एक जैसा नहीं होते. तो क्या होता है उसमें, you know very well that in your class students are not equal or same. Some are very good, some are very lazy, some are very idle. So there are various types of students in your class also. So you have your opinions about all these children. So here that was the same thing with Albert Einstein. His classmates had their own opinion about Einstein and they thought that he is a very boring guy. वो यही सोचते थे कि ये एक बहुत ही बोरिंग लड़का है, क्योंकि उसके सहपाठियों की भी यही क्या थी, एक उनकी राय थी उसके बारे में. So the youngster played by himself much of the time. So that's why this youngster means here we are talking about Albert Einstein. Here youngster is used for Albert. Okay, so if you are asked that youngster refers to, so youngster refers to Albert Einstein. Okay, so Albert Einstein played himself all the time. इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करता था, खुद ही खेलता था. मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय जो है वो क्या करता था, अपने साथ में ही खेलता था. खुद अकेला बैठा खेलता रहता था, किसी का साथ उसमें नहीं था. He especially loved mechanical toys. Listen to me carefully. When he was child and he was playing individually or alone, most of time he spent himself alone. At that time he loved mechanical toys. वो क्या करता था, बच्चे जो है उनको तो हर प्रकार की चीजें अच्छी लगती हैं, कार्टून अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनको जो है वो दूसरे खेल अच्छे लगते हैं, बच्चों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है. पर यहाँ पर क्या था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से ही क्या चीजें पसंद थी, मैकेनिकल टॉयज पसंद थे. ये यंत्र यानी कि ये जो आपके चाबी वाले या दूसरे रिमोट से चलने वाले या इस तरह के जो खिलौने आते हैं, ऐसी चीजें उसे बहुत ज्यादा पसंद थी. लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, he is said to have said, fine, but where are her wheels? कितनी बढ़िया बात उसने कही. उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब उसकी एक छोटी बहन पैदा हुई, कि लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, नई जन्म लेने वाली नवजात शिशु, अर्थात एक न्यू बॉर्न मतलब नवजात, एक नवजात जो है इन्फेंट को बोलते हैं न्यू बॉर्न, इन्फेंट, एक नवजात शिशु जिसकी बहन जो है पैदा हुई. तो उसने जैसे ही अपने बहन को देखा, अब जैसे आपको बताया मैंने, एज आई हैव टोल्ड यू दैट ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज सो मच, व्हेन एज ही सा हिज सिस्टर देयर वाज अ क्वेश्चन एंड हिज क्वेश्चन वाज, उसका एक प्रश्न था वहां पर, और उसका प्रश्न क्या था, वेयर इज हिज टायर्स, इसके टायर कहाँ हैं. क्योंकि उसको लगा ये भी क्या है, खिलौना सा है, छोटी सी है, खिलौना है. तो उसने भी सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा कि बट वेयर आर हर व्हील्स, कि अरे इसके व्हील्स कहाँ हैं, व्हील्स सॉरी, इसके व्हील्स कहाँ हैं, इसके पहिए कहाँ हैं, ये चलेगी कैसे. A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession without matter, because he will never make a success at anything. So after that, in third paragraph we are reading that after taking admission in school, what was the opinion of her teachers, his teachers.
कि जब उसने स्कूल में एडमिशन ले लिया तो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में उसके जो टीचर्स थे उनकी क्या ओपिनियन थी, उनकी क्या राय थी, अब हम वो चीज़ इसमें देख रहे हैं। तो जैसे ही उसने क्या किया, वहाँ स्कूल में एडमिशन लिया, एज ही टुक एडमिशन इन द स्कूल, सो ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, सो वंस इन a PTM or when his father met with the headmaster told his father, headmaster ने इसके पिता को कहा, क्या कहा, that what Einstein choose as a profession wouldn't matter, कि आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज करेगा, क्या व्यवसाय चूज करेगा, क्या काम करेगा, डजंट मैटर, कोई मामला ही नहीं है इस चीज का, कोई महत्व नहीं रखता। क्यों महत्व नहीं रखता? क्योंकि हर चीज में फेल है, ये कोई काम ही नहीं करता है, क्योंकि he will never make a success at anything. What his headmaster was saying that whatever he will do, he never get success in anything else. कि जो कुछ भी वो करेगा, वो चाहे कुछ भी करे, he never get success, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेगा, he will never get success, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं करेगा। तो आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. So when he was 6 years old, so he started playing violin. Violin आता है इस प्रकार से बना हुआ, इस तरह का एक बना हुआ आता है जिसके अंदर जो है ये तार लगी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, और ऐसा एक यहाँ तार होता है जिससे उसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। तो एट द एज ऑफ 6, when he was 6 years old, he started playing violin because his mother wanted him to. And why he started trying playing violin? Because his mother wanted him to do so. उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। He later became a gifted amateur violinist, and after that he became a very amateur violinist. Amateur मतलब अपरिपक्व। Here you have given the meaning of amateur, doing something for personal enjoyment rather than as a profession. Okay. So rather than a profession, he enjoyed it personally. उसने प्रोफेशन के रूप में इसको चूज नहीं किया, अपने काम के रूप में वायलिन को चूज नहीं किया, वो अपने एंजॉय के लिए वायलिन बजाता था। तो इसलिए वो एक एमेच्योर वायलिनिस्ट था, मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसने अपनी इस स्किल को, अपने इस उसके अंदर जो गुण था, वैल्यू जो थे, उसको उसने पूरी थ्रू आउट हिज लाइफ, थ्रू आउट मतलब पूरी अपने पूरे जीवन काल के दौरान उसने इसको अपने साथ रखा, अपनी स्किल को डेवलप किया और हर वायलिन बहुत अच्छा उसने बजाना सीख लिया। But Albert Einstein was not a bad pupil. Now what the author is saying here, writer is saying here, that Albert Einstein was not a bad pupil. एक बुरा शिष्य नहीं था, pupil. Pupil means student, शिष्य। So he was not a bad pupil. वो एक बुरा स्टूडेंट नहीं था। He went to high school in Munich. म्यूनिक में वो हाई स्कूल में गया, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. So why he went into Munich? Because his family was moved over there when he was 15 months old. 15 months old means, you know that 12 months means 1 year, and then 3, we can say, after 15 months he went into the his family went into the Munich, so that's why he had to go with him. तो उसको जाना पड़ा उनके साथ में, and scored good marks in almost every subject. And there when he was in the school, he scored good marks in every subject. कि उसने वहाँ पर क्या किया, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स जो वो गेन किए। आइंस्टाइन hated the school's regimentation and often clashes with his teachers. So here what the author is saying, regimentation. Orders. Regimentation means orders. Here the poet is saying, Einstein didn't love the regimentation means orders of the teacher over there. He scored good marks, but he didn't like the behavior of the teachers, how the way they ordered the Einstein in the class. He didn't like them. कि जिस तरीके से उसने ऑर्डर करते थे वो टीचर्स आइंस्टाइन को, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो पसंद ही नहीं करता था उनको।
तो उसने वो स्कूल भी क्या कर दिया, छोड़ दिया वहां पर। सो ऑफन क्लैशेस विद दिस टीचर्स, जिसकी वजह से अक्सर क्या होता था, क्लैशेस होते थे, क्लैशेस झगड़े, कि अक्सर क्या होते थे, क्योर्स झगड़े, कि अक्सर उनके आपस में जो टीचर्स है उसके साथ में झगड़े होते थे। तो एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो stifled there that he left the school for good. So when he was 15 years old, जब वो 15 साल का था तो उसने क्या किया कि वो बहुत बुरी तरह से जो है वो सांस लेना मुश्किल हो गया था, unable to breathe। स्टिफल का मतलब क्या होता है, अनेबल टू ब्रीथ, कि वो क्या है कि सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो गया था। जब सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो गया तो ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल को छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan, and the previous year, पिछले ही साल, when he wrote this chapter, or here the author is saying that the previous year his parents moved to Milan. So from Munich they went to Milan. कि म्यूनिक से वो कहाँ चले गए, मिलान चले गए, and left their son with relatives, but they didn't take their son with them. परंतु वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर के नहीं गए, और उन्होंने अपने बेटे को कहाँ छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर छोड़ दिया। यानी कि वो खुद तो कहाँ चले गए, मिलान चले गए, परंतु उन्होंने आइंस्टाइन को कहाँ छोड़ दिया, अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. So after a prolonged decision, prolonged मतलब काफी लंबी चर्चा के बाद में, ठीक है, उन्होंने उसने आखिरकार एक डिसीजन लिया that he will continue his study, कि वो अपनी स्टडी को लगातार जारी रखेगा। And कहाँ जारी रखेगा, where he will study, he will study in German-speaking Switzerland, in Switzerland where people are speaking German language. So he will study in Switzerland and in a city which was more liberal than Munich, and he will study in a city that is more liberal, जहाँ पर वो ज़्यादा आज़ादी है। Liberal मतलब आज़ादी, freedom। लिबरल यानी कि फ्रीडम। तो उसने क्या किया कि इसने डिसीजन लिया कि ही विल गो टू स्विट्जरलैंड एंड देयर ही विल स्टडी, एंड बिकॉज व्हाई ही विल गो टू स्विट्जरलैंड, बिकॉज इन स्विट्जरलैंड देयर वाज मच लिबरल देन म्यूनिक। म्यूनिक की बजाय जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे ज़्यादा उनको आज़ादी बच्चों को मिलती थी। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। लिसन टू मी केयरफुली, it will be asked in questions that Einstein was very intelligent in two subjects, and these two subjects are mathematics and physics. He always took interest in mathematics and physics. उसने मैथ्स और फिजिक्स में हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसने लिया। And after finishing schools, he decided to study at a university in Zurich. And after that, when he finished his study in school, as you have passed 12th class in school, after that you will go in college. जैसे आप 12th class पास कर लोगे तो उसके बाद कहाँ जाओगे, कॉलेज में जाओगे। So like that, he also went into the college. इसी तरह ये भी कहाँ गया, कॉलेज में गया। और कॉलेज कहाँ पर गया, यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है जूरिक में। जूरिक इज ए प्लेस, जूरिक एक स्थान है, तो वहाँ पर वो चला गया। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Means here the author is saying that only science was not the thing, कि केवल एक साइंस ही नहीं थी जो आइंस्टाइन को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, अट्रैक्ट करती थी। अपील्ड मीन्स अट्रैक्टेड, ओके। Appealed, attracted. Only science was not the thing that was attracting Einstein. केवल साइंस ही वो चीज नहीं थी जो आइंस्टाइन को अट्रैक्ट कर रही थी। To the dashing young man, dashing means that looking young man. This young man who with the walrus mustache means he had a walrus type of mustache. Mustache मतलब मूछे, as you can see in the picture here. Okay, so these types of mustaches are called walrus mustaches. So today is sufficient in this class. So next
chapter we will do in our next video. Till then, goodbye and take care. Thank you.